Good morning, class 8. Welcome back to your chemistry classroom once again. Hope all of you watched the last video. Today I'm going to start the periodic table. So look at your book. Mendeleev 1869 classified elements systematically in a table called modern periodic table. At first I want to say the name of the scientist is not Mendeleev. That is Mendeleev. According to Mendeleev, elements are arranged systematically in this table by their increasing atomic number. In this periodic table, there are 7 periods and 18 groups. The horizontal column of these periodic tables are known as period, and the vertical column of this periodic table are also known as groups. So look at it here. Here is an example. Nitrogen atomic number is 7, mass number 14. As because the atomic number is 7, nitrogen placed is here. Look at it here. Atomic number 5, 6, 7. So increasing atomic number, according to increasing atomic number, nitrogen placed after boron, carbon. Next, symbols and valency of the first 20 elements in the modern periodic table. Hydrogen, symbol H, atomic number 1, electronic configuration. As the first cell, it has only 1 electron. So valency is 1, non-metal. Helium, atomic number is 2. First cell में कितने इलेक्ट्रॉन है 2. So valency 0. It is noble gas. Lithium, atomic number 3, electronic configuration 2, 1. In the last cell there are 1 electron, that's why its valency is 1, metal. Beryllium, atomic number is 4. The last shell, it has 2 electrons, that's why its valency is 2, and it is metal. Next, boron, 5, 2, 3. Last cell, there are 3 electrons, that's why its valency is 3, metalloid. Carbon, 6, 2, 4. So, valency is 4, non-metal. Nitrogen, 7, 2, 5. For electronic configuration, as per electronic configuration, स्टेबल होने कारण उसका लास्ट सेल में 8 होना जरूरी है, इसीलिए 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा दूसरा एलिमेंट से, इसलिए उसका वैलेंसी क्या होगा -3, नॉन मेटल. नेक्स्ट, ऑक्सीजन 8 to 6. सो फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब सेटलमेंट के लिए उसका 2 इलेक्ट्रॉन जरूरी है, इसलिए उसका वैलेंसी होगा -2, नॉन मेटल. सेम वे फ्लोरीन 7 है, 1 जरूरी है, इसलिए उसका वैलेंसी है -1, नॉन मेटल. अगेन नियॉन 10 to 8. सेकेंड सेल में मैक्सिमम 8 होना जरूरी है, इसीलिए उसका वैलेंसी है 0, नोबल गैस. सोडियम 11 to 81. 1 दूसरे एलिमेंट को दे देगा, इसीलिए उसका वैलेंसी है 1 + 1, मेटल. मैग्नीशियम का 12 to 82, वैलेंसी है +2, मेटल. सेम वे एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 to 83. लास्ट सेल में है इलेक्ट्रॉन 3, इसलिए 3 दे देगा, हो जाएगा मेटल. नेक्स्ट, सिलिकॉन 14 to 84. 4 है उसका वैलेंसी, मेटलॉइड. फॉस्फोरस 15 to 85. 5 होने के कारण 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसलिए इसका वेरिएबल वैलेंसी जो है ये -3 भी हो सकता है, मतलब 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, नॉन मेटल. नेक्स्ट, सल्फर 16 to 86. 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, नॉन मेटल. फ्लोरीन 17 to 87. 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, नॉन मेटल. आर्गन 18 to 88. नोबल गैस, उसका वैलेंसी है 0. Next, potassium 19 to 881. The last cell there is only 1 electron, so
ये इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट को डोनेट करेगा, इसलिए उसका वैलेंसी है +1. इट इज ऑल्सो मेटल. कैल्शियम 22882, इसलिए उसका वैलेंसी हो गया 2. इट इज ऑल्सो मेटल. नेक्स्ट, केमिकल फॉर्मूला. Chemical formula. It is the representation of a substance by mean of symbol. So basically chemical formula is a representation of substance by their symbols. It denotes in a compound the number of atoms of each element present. So by chemical formula, it means the number of atoms of each elements present. मतलब एक एलिमेंट का कितना एटम प्रेजेंस है हम केमिकल फॉर्मूला के द्वारा जान सकते हैं. सब्सटेंस, सिंबल्स, नंबर ऑफ एटम्स ईच एलिमेंट प्रेजेंट, केमिकल फॉर्मूला. सोडियम क्लोराइड, सिंबल्स NaCl, 1 atom of sodium, 1 atom of chlorine form NaCl. नेक्स्ट, केमिकल फॉर्मूला, मेथड ऑफ राइटिंग, लिखने की प्रोसेस. टू राइट ए केमिकल फॉर्मूला यू शुड नो symbol of the element or radical and valency of the element or radical. So at first we should know the symbol of the element or particular radical and the valency of the particular element or radical. And the next one is the writing the formula of magnesium chloride. Magnesium and chlorine दोनों का सिंबल पता है, Mg and chlorine. So मैग्नीशियम का वैलेंसी है 2+ एंड क्लोरीन का है 1. तुम लोगों को पता है आफ्टर क्रिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वैलेंसी एक्सचेंज होता है. तो ये होने के कारण क्या होगा, Mg2+ Cl1-. So step 1, valency of each symbol is written on the top right hand corner. valency जो जिसका है, जिसका जितना है ये हम लोग को ऊपर में लिखना है. एंड द पॉजिटिव आयन रिटन फास्ट, पॉजिटिव जो है उसको पहले लिखना है. सो दीज आर द टू प्रोसेस. तो नॉर्मली हम लोग वैलेंसी जो है एलिमेंट का और रेडिकल का पहले उसके ऊपर में लिखेंगे राइट साइड में, राइट साइड टॉप कॉर्नर में. और ऑब्वियसली पॉजिटिव जो आयन है उसको पहले लिखना है. ऐसा नहीं हम क्लोरीन को पहले लिख देंगे, क्योंकि पॉजिटिव आयन को पहले लिखेंगे, नेगेटिव आयन को उसके बाद. सो ऐसे ही क्रिस क्रॉस कॉर्नर में, मतलब क्रिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होने के कारण नॉर्मली ये वैलेंसी एक्सचेंज हो जा रहा है. इग्नोर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को इग्नोर करने के बाद सिर्फ नंबर को हम लोग काउंट करेंगे. Step 3, write the interchange number and hence the formula. So Mg1Cl2, formula क्या होगा, MgCl2. So what is the process? I just want to say once again. Look at it up first. So for chemical formula, we should know the proper symbol of the particular element and radical and their valency also. तो पहले हम लोगों को एलिमेंट हो या रेडिकल हो उसका सिंबल पता होना चाहिए, उसी के साथ उसका वैलेंसी जो है वो भी पता होना चाहिए. नेक्स्ट स्टेप 2 क्या होगा, उसके बाद हम लोग नॉर्मली पर्टिकुलर एलिमेंट्स का जो वैलेंसी है उसका राइट साइड ऊपर का कॉर्नर में लिखेंगे. पहले लिखेंगे पॉजिटिव आयन को, उसके बाद नेगेटिव आयन को. उसके बाद पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को इग्नोर करने के बाद जिसका जो नॉर्मली वैलेंसी है ऐसे क्रिस क्रॉस कॉर्नर में मल्टीप्लाई हो जाएगा. मतलब आफ्टर एक्सचेंज होने के कारण ये मैग्नीशियम क्लोराइड जो फॉर्म हो रहा है उसका सिंबल हो रहा है MgCl2. नेक्स्ट, केमिकल फॉर्मूला, एग्जांपल ऑफ मेथड ऑफ राइटिंग्स. सिंबल ZnS, वैलेंसी है 2+ 2-. देखो पहले हम जिसका जो वैलेंसी है ऊपर में लिखेंगे, उसके बाद नॉर्मली ये प्लस माइनस साइन को इग्नोर करने के बाद क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है. देखो Zn का भी 2 और S का भी 2, तो ऐसे 2 मतलब इक्वल हो जाने के कारण फॉर्मूला क्या होगा, ZnS. सेम वे आयरन 3 सल्फेट, आयरन 3+ और सल्फेट का रेडिकल का मतलब ये सल्फेट रेडिकल का वैलेंसी क्या है 2-.
सो पहले ऊपर में लिखेंगे 3 + 2 माइनस, आफ्टर एक्सचेंजिंग इट फॉर्मूला क्या होगा, Fe2SO4 होल थ्राइज। इसको क्या बोला जाता है, होल थ्राइज, मतलब इसका भी 3 और 4 का भी 3, इसलिए होल थ्राइज। सेम वे एमोनियम कार्बोनेट, NH4 रेडिकल का वैलेंसिया है 1+ और कार्बोनेट रेडिकल का वैलेंसिया 2-। सो आफ्टर क्रिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये फॉर्मूला क्या फॉर्म होगा, NH4 होल ट्वाइस CO3। NH4 होल ट्वाइस किस लिए हो रहा है, क्योंकि CO3 का 2 और NH4 का 1। सो आफ्टर क्रिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब वैलेंसी एक्सचेंज हो जाने के कारण ये फॉर्मूला फॉर्म हो रहा है NH4 to CO3। So student, hope all of you understood what I've discussed in this video. So for today up to this portion.